प्रभु की स्तुति हो। What a wonderful day to be with you. और कितना सुंदर दिन है आपके साथ रहने के लिए। Today is our last Sunday in India for this trip. और इस ट्रिप के लिए आज हमारा आखिर का इतवार है। And tonight we will be jumping on the airplane and disappearing as we continue going around the world. और आज जो है रात को हम एरोप्लेन पर हम जाएंगे और जैसे हम पूरी दुनिया भर में घूमते हैं। But my wife and I, Elizabeth, we would just again say just a huge thank you और for the welcome, the love, the meals, everything that comes to us. We are so grateful. और मैं और मेरी पत्नी लिज हम आप सभी को बेहद धन्यवाद देना चाहते हैं आपके स्वागत के लिए, आपके प्रेम के लिए और जब जो भी सब कुछ आता है आपके प्रेम के साथ उसके लिए। Since we were here 3-4 weeks ago, we've been to Pune, we've been down to Goa, we've been back to Kaga, down to Pune again, via Lonavala. So yeah, we've been skirting around Maharashtra a little bit. और जब हम 3-4 हफ्ते पहले आए तब से हम पुणे गए हैं, गोवा गए हैं, वापस हम पुणे गए हैं, लोनावला गए हैं, महाराष्ट्र के इर्द गिर्द हम फिरते रहे हैं। And we've had the privilege of meeting some amazing, wonderful people who belong to the same Lord Jesus that you belong to. और हमारा ये सौभाग्य था कि हम कुछ खास लोगों से मिल पाए जो परमेश्वर, जिस परमेश्वर के आप हो उसी परमेश्वर के हैं। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Seatbelts on? सीट बेल्ट आपने पहना है? Wonderful. Let's just pray. Heavenly Father, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, speak to us today. आज हमसे बातें कर, Open our eyes, हमारी आंखों को खोल, the eyes of our spirit. हमारी आत्मा की आंखों को, Let the spirit of wisdom and understanding come upon us. और ज्ञान की और बुद्धि की आत्मा हम पर आए। Revelation in the word of God, we pray. परमेश्वर के वचन में प्रकाशन हम प्रार्थना करते हैं। Thank you, Holy Spirit, you're with us. धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ हैं। In Jesus' name, यीशु के नाम में। amen. I'm going to start with a story and then I'm going to wander you through some scripture and then come to a major story and then we're going to apply it to our lives today. और मैं एक कहानी से शुरुआत करूंगा और हम कुछ वचनों को देखेंगे और फिर आखिर में एक बड़ी कहानी में आपको बताऊंगा और मैं देखेंगे कि हम उसको हमारे जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। And I've entitled this message Through His Eyes. और मैंने इस संदेश का शीर्षक ऐसे दिया है कि उसके नजरिए से। My prayer this morning और मेरी प्रार्थना आज सुबह ये है is that when you leave here, कि जब आप यहाँ से जाते हो you will have begun to understand और आपको ये समझ आने लगेगा in a fresh measure what is our Father looking for. और एक नए नजरिए से कि हमारा पिता क्या खोज रहा है। What does he see through his eyes? और हमारा पिता जो है उसके नजरिए से क्या देखता है। So there were 3 men तो 3 पुरुष थे and they were making bricks. Their job was making bricks. और उनका काम था ईंट बनाना। It's a well-known illustration. और ये एक बहुत ही जाना पहचाना सा उदाहरण होगा। And somebody comes along and he says to the first man making bricks, और कोई आता है और जो पहला व्यक्ति ईंट बनाता है उससे कहता है, so what are you doing? वो कहता है तुम क्या कर रहे हो? Can't you see I'm making bricks? और वो कहता है क्या तुम देख नहीं सकते मैं ईंट बना रहा हूँ। So he goes to the next man who's making bricks. और फिर वो दूसरे व्यक्ति के पास जाता है जो ईंट बना रहा है। He says, what are you doing? वो कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? Oh, he says, I'm a builder. I'm just building a building. और वो कह रहा है कि मैं एक बिल्डर हूँ, मैं तो इमारत बना रहा हूँ। He comes to the third man who's making bricks. और तीसरा व्यक्ति जो ईंट बना रहा है वो उसके पास आता है And he says, what are you doing? और वो उससे पूछे तुम क्या कर रहे हो? And the man says, can't you see? और वो कहता है क्या तुम देख नहीं पा रहे? I'm building this incredible cathedral so that we can worship God. और क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि मैं ये बड़ा सा इमारत बना रहा हूँ ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें। 3 men doing the same thing. और 3 लोग वही काम कर रहे हैं। But 3 men with a different set of glasses. लेकिन वो अलग प्रकार के चश्मे से देख रहे हैं। A different set of eyes. और एक अलग आंखों से वो देख रहे हैं। And I wonder when you look at your life, और मैं सोच रहा हूँ कि जब आप अपने जीवन को देखते हैं, what set of eyes do you use
for yourself. और आप कौन से आंखों का उपयोग करते हो अपने आप को देखने? Because sometimes we look at our life and think, man, all I do is I just make bricks. और क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जीवन को देते हैं मैं तो सिर्फ ईंट ही बनाता I'm हूँ just building something. या मैं कुछ बना रहा हूँ। But God wants us to have a set of eyes लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा नजरिया ऐसे हो that actually begin to see what He is doing. ताकि हम वो देख पाए जो वो कर रहा है। So Psalm 103 verse 7. तो भजन संहिता उसका 103 7वां वचन Psalm 103 verse 7. और भजन संहिता 103 7वां वचन, It says here that God revealed His ways to Moses. और यहाँ पर लिखा गया है कि उसने मूसा को अपने मार्ग दिखाए, But His acts were revealed to the children of Israel. और इज़राइलियों पर उसने अपने काम प्रकट किए। So the same event that is happening, तो वही काम जो हो रहा है, Moses sees something about how God is operating, और मूसा देखता है कि परमेश्वर किस प्रकार काम कर रहा है, but the nation of Israel, all they see is the bread that's coming, the water that's coming. They just see a miracle. और जो इज़राइल के लोग हैं वो देखते कि जो मन्ना है वो आ रहा है, पानी आ रहा है, वो सिर्फ चमत्कार को देख रहे हैं। Same circumstance, वही परिस्थिति, different perspective. अलग नजरिया। If you come across to Mark's Gospel, chapter 6, और अगर मरकुस उसके 6वें अध्याय में आप आते हैं, this is the story where Jesus feeds the 5,000 men plus the women and the children. और ये वो कहानी है जहाँ पर यीशु 5,000 पुरुष और उनकी जो स्त्रियां हैं और बच्चे उनको खिलाता है, And everybody's pretty excited. और सभी लोग वहाँ पर बहुत This उत्सुक is हैं amazing. कि ये बहुत अच्छा Free है food. Wow, और this is मुफ्त का awesome. खाना ये बहुत बढ़िया है। And when they wake up the next morning, और जब वो अगले दिन उठते हैं they realize Jesus is not there anymore. और उनको ये पता चलता है कि यीशु अब वहाँ पर नहीं है, So some of them come by boat, some of them run round the lake. They come to find Jesus. और कुछ लोग नाव से आते हैं, कुछ लोग उस नदी के दूसरे ओर से जाकर यीशु को खोजते हैं। And in chapter 6 verse 52, और मरकुस उसका 6वां अध्याय 52 वचन में, Mark chapter 6 verse 52, और मरकुस उसका 6वां अध्याय 52 में Jesus says to these people, he says, you came after me because your stomachs were filled. और यीशु उन लोगों से कहता है तुम मेरे पीछे इसीलिए आए क्योंकि तुम्हारे पेट भरे थे, But not because you understood the miracle. और तुम इसीलिए नहीं आए क्योंकि तुम्हें चमत्कार समझ आया। So what Jesus is actually saying, तो यीशु यहाँ पर क्या कह रहा है? the miracle has words beyond just the multiplication of food. कि जो चमत्कार है उसका कुछ अर्थ है, उसका कुछ शब्द है, सिर्फ खाना जो है वो बहुगुणित होना नहीं है। And it's so easy for any of us. और हम में से किसी के लिए ये बहुत आसान है, We can look at the spectacular miracles. और हम उस महान चमत्कारों को देख सकते हैं, But have we ever lifted the page to look deeper into that event? लेकिन क्या हमने कभी उस चमत्कार के गहराई में देखा है कि क्या हो रहा है? It was easy for Jesus to feed the 5,000. No problem. और यीशु को 5,000 लोगों को भोजन खिलाना बहुत आसान था, But to try and get the people to see a little bit deeper into that event, that was a huge challenge. लेकिन जो चमत्कार उसने किया उसकी गहराई में देखने को लोगों को वो बहुत ही मुश्किल था। 5,000 people, they saw 5 loaves and 2 fishes multiply. और 5,000 लोग उन्होंने देखा कि 5 रोटियां 2 मछली है वो बहुगुणित होती है। Heavenly Father, और स्वर्गीय पिता he saw hearts उसने that were hardened to what he was trying to say to them. और जो परमेश्वर उनको कहना चाहता था उनका मन कठोर हो गया था, उसने देखा। Now that's a tragedy. और ये बहुत दुख की बात है That we or them would be distracted by the miracle and miss the words of God. कि हम और वो लोग चमत्कार से भटक सकते हैं, चमत्कार के कारण हमारा ध्यान भटक सकता है और परमेश्वर के वचन को हम छोड़ दे। Philippians chapter 1 verse 6. और फिलिपियो उसका पहला अध्याय 6वां वचन, Philippians 1:6 is a very well known verse. और फिलिपियो उसका पहला अध्याय 6वां वचन बहुत हमें सभी को पता है।
The Apostle Paul says, I am confident और प्रेरित पौल कहता है कि मेरा ये विश्वास है that God who is faithful, कि परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, He's begun a good work in you. उसने तुम्हारे अंदर एक अच्छे काम की शुरुआत की है And He is going to complete that work until the day of Jesus' return. और यीशु के आने के दिन तक वो उसे पूरा करेगा। Now we love the fact that God is faithful. और हमें ये बात पसंद है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है We love the fact that God has begun a good work in us. और हम इस बात से बहुत खुश है कि परमेश्वर ने एक अच्छा काम हमारे अंदर शुरू किया है। But do we accept लेकिन क्या हम इस बात को मानते हैं that God is going to continue to work until the day of Jesus Christ? कि मसीह के दिन तक वो उस काम को पूरा करते रहेगा। I'd love it if I got saved, filled with the Spirit, and all my problems went away. और Any takers for that? और मैं बहुत खुश होता अगर मैं परमेश्वर का मेरा उद्धार हो जाए, मैं आत्मा से भर जाऊं और मेरे सभी समस्या जो है वो निकल जाए। But the Bible actually says here, God is going to start work and He's going to continue working, continue working, continue working, continue working because He has a purpose. और लेकिन वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने उस कार्य को शुरुआत की है, लेकिन वो उस कार्य को करते रहेगा, उसे करते रहेगा, उसे करते रहेगा। And if we think that God is going to make life easy for us, और अगर हम ये सोचते कि परमेश्वर हमारे लिए जीवन आसान बनाएगा, then we're not understanding the word of God. तो हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ रहे। Pastor said this morning, पासवान ने इस सुबह कहा, we need to shift our thinking into alignment with the word of God. और हमें हमारे सोच को परमेश्वर के वचन के अनुसार रखना है। So this morning I'm talking to you about the ways of God, not the actions of God. और इस सुबह मैं आपके साथ परमेश्वर के तरीके के बारे में बात कर रहा हूं, परमेश्वर के कार्य के बारे में नहीं। Come with me to John chapter 11. और आप मेरे साथ यूहन्ना उसके 11वां अध्याय में आए। John chapter 11 is the story of Lazarus. और यूहन्ना उसका 11वां अध्याय लाजरस की कहानी है। This is one of the most incredible stories in the New Testament. और ये नए नियम में जो बहुत बेहद अच्छा और बेहद सामर्थ्य कहानी है, Because it illustrates the difference between looking for the actions of God and looking for the ways of God. क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझाता है कि परमेश्वर के तरीके को और परमेश्वर का कार्य कैसे अलग है। So in verse 4, चौथे वचन में a message comes to Jesus that Lazarus, his good friend, is sick. और यीशु के पास एक संदेश आता है कि लाजरस जो उसका बेहद अच्छा मित्र है वो बीमार है। And Jesus responds this way. और यीशु इस प्रकार उत्तर देता है, This sickness will not end in death, but it is for the glory of God. कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। We would expect और हम ये अपेक्षा करेंगे that if God came to you and said, this is for the glory of God, और परमेश्वर आपके पास आता है और वह कहता है कि ये परमेश्वर के महिमा के लिए है, you would expect that God is going to prevent anything bad happening to you. और हमारी ये अपेक्षा रहेगी या हमारा सोच ऐसा रहेगा कि कोई भी बात अगर बुरा होने वाला है परमेश्वर उसे रोकेगा। And in the minds of the disciples, और शिष्यों के दिमाग में I'm quite sure मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ, they were thinking, Jesus is going to heal Lazarus. अरे हाँ यीशु यहाँ पर लाजरस को चंगाई देगा। But if we continue to read the story, लेकिन अगर इस कहानी में हम आगे पढ़ते हैं, it says Jesus loved Martha. This is verse 5. 5वें वचन में हम देखते हैं कि यीशु मार्था से बेहद प्रेम करता था। He loved Martha, he loved Mary, he loved Lazarus. But when he heard that Lazarus was sick, he stayed 2 more days. और हम देखते हैं कि वो मार्था से, मरियम से, लाजरस से बेहद प्रेम करता था, लेकिन जब उसने यह सुना वह जिस स्थान में था वहाँ 2 दिन और ठहरा। How can Jesus और यीशु overlook the sickness of his close friend?
अपने प्रिय मित्र के बीमारी को कैसे नजरअंदाज कर सकता है? What do you think was going through Lazarus's mind? आपको क्या लगता है लाजरस अपने मन में क्या सोच रहा था? The reality is, by this point, he was actually already dead. और सच्चाई तो यह है कि उस समय तक तो वो मर भी गया था। The story says when Jesus got there, he'd been dead 4 days. So 2 days later, Jesus is not gone, Lazarus is already dead. क्योंकि हम देखते हैं आगे जाकर जब यीशु वहां पर पहुंचता है तो वो लाजरस को मरे 4 दिन होता है और यीशु वहां पर 2 दिन ठहरा तो वो पहले से मर चुका है। But we read this story and we think, Jesus knows there's a problem. और हम इस कहानी को पढ़ते हैं और हम ये सोचते हैं कि यीशु जानता है कि एक समस्या है। And he stands back and he waits for 2 days. और वो पीछे रुकता है और वो और दिन वहां पर 2 दिन वहां पर ठहरता है। When's the last time you or I stood in a situation and we said, Jesus, I'm sick, I've got a problem? और कब क्या आपको याद है किसी परिस्थिति में जब हम अटके हैं और हम यीशु से कहते हैं यीशु मेरी एक समस्या है, मैं बीमार हूँ। And it seems like Jesus is just waiting for 2 days. और हमें ऐसा लगता है कि यीशु वहां पर ऐसे 2 दिनों के लिए रुका है। God, where are you? परमेश्वर तुम कहाँ हो? Can't you see I'm dying? क्या तुम देख नहीं सकते मैं मर रहा हूँ? You see, when you look at the external situation, और जब तुम बाहरी परिस्थिति को देखते हो you see a crisis. आप एक समस्या देखते हो। But if you understand how Jesus was looking at this situation, लेकिन जब आप समझते हो कि यीशु इस परिस्थिति को कैसे देख रहा है Jesus knows what is going to happen. और यीशु को पता है क्या होने वाला है This whole situation is set up. और ये जो पूरा परिस्थिति है वो उसका बनाया है। It's set up so that Jesus can reveal something about himself. और वो इस प्रकार बनाया गया है ताकि परमेश्वर अपने बारे में कुछ प्रकट करे। Let's keep reading. और हम आगे पढ़ते जाएंगे। John chapter 11, यूहन्ना उसका 11 अध्याय verse 11. 11 वचन। Jesus says, our friend Lazarus has fallen asleep. I'm going to wake him up. और वो कहता है हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसको जगाने जाता हूँ। And all the disciples thought, well, if he's asleep, what's the problem? तो तब सभी शिष्यों ने चेलों ने सोचा कि वो अगर सो गया है तो फिर क्या समस्या है? So Jesus says, no, he's dead. यीशु ने कहा नहीं वो मर चुका है। And then he says, I'm glad that I wasn't there for your sake. और वो कहता है कि मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां न था। Sometimes we walk situations in life. और कभी-कभी हम अपने जीवन में इस प्रकार के परिस्थिति से चलते हैं। And it seems to be getting worse, and it seems to be getting worse, and it seems to be getting worse. और वो जो परिस्थिति है वो बुरा होते जाता है और वो और बुरा होते जाता है। And how would you feel if I said Jesus is happy that it's getting worse? और आपको कैसे महसूस होगा अगर मैंने आपसे ये कहा कि यीशु बेहद खुश है कि तुम्हारी परिस्थिति बिगड़ रही है? You see, if all we can see is the crisis, अगर हम सिर्फ उस परिस्थिति को ही देखते हैं, if all we can see is the difficulty or the problem, अगर हम जो समस्या है या जो मुश्किल बात है उसे ही देखते हैं, what if our eyes were actually on the Savior himself? और या अगर क्या होता अगर हमारी जो आंखें है जो उद्धार करता है उसके ऊपर हो? And Jesus says, और यीशु कहता है verse 15, 15वें वचन में for your sake, कि तुम्हारे कारण I'm glad that I was not there, so that you may believe. और मैं आनंदित हूँ मैं वहां न था जिससे तुम विश्वास करो। If you call pastor to come and pray for you, अगर आप पासवान को कॉल करते हो और उनको कहते कि वो आपके लिए प्रार्थना करे, and pastor says, I'll come next week, और पासवान कहेंगे मैं अगले हफ्ते आता हूँ, you think, what kind of pastor is this? आप सोचेंगे किस प्रकार का पासवान है ये? And yet Jesus, the good shepherd, और हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु जो अच्छा चरवाहा है, he says, I'm glad, वो कहता है मैं आनंदित हूँ because out of this situation, क्योंकि इस परिस्थिति में से
You imagine Jesus looking into the eyes of his disciples. और आप ये कल्पना कीजिए, यीशु अपने चेलों की आंखों में आंखें डाल कर कहता है, You are going to see something. तुम कुछ देखोगे You are going to have faith grow within you. और तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ेगा. You're going to come out of this with a belief that you did not have before. और तुम एक ऐसे विश्वास के साथ बाहर आने वाले हो जो प्रकार का विश्वास पहले न था. What is God's agenda for you and your situation? और आपके लिए, आपके परिस्थिति के लिए परमेश्वर का क्या योजना है? You see, if we are only looking at the crisis, अगर हम सिर्फ मुश्किल हाथ को देख रहे हैं, we only see that. हम सिर्फ वही देखते हैं. But through the Father's eyes, लेकिन पिता के नजरिए से He has an agenda. उसका एक योजना है, He has a purpose. उसका एक उद्देश्य है. He has something that He wants to embed into us. और वो कुछ, उसके पास कुछ ऐसा है जो वो चाहता है कि वो हमारे अंदर रहे. And that's a dimension of faith that we don't have now. और वो एक ऐसा विश्वास है जो अभी हमारे पास नहीं है. Let's keep reading John chapter 11. और यूहन्ना उसके 11वें अध्याय को हम पढ़ते रहेंगे. Jesus comes to this town where Lazarus lives. और जहाँ पर लाजरस रहता है उस नगर में यीशु आता है. Verse 20. 20 वचन. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. और जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो वो तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर पर बैठी रही. Verse 21. 21 वचन. Lord, Martha said to Jesus, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, if you had been here, यदि तू यहाँ होता, where were you? तुम कहाँ पर थे? Why didn't you come sooner? तुम जल्दी क्यों नहीं आए? You imagine Martha. आप मार्था का कल्पना कीजिए. I think she would have fallen on her knees. और मुझे लगता है वो शायद अपने घुटनों के बल गिरे. Jesus. किसने कहा, यीशु, My brother's dead because you didn't come. और क्योंकि तुम नहीं आए मेरा भाई मर गया है. She's grieving. वो वहां पर दुख मना रही है. You see, the man in the house और जो घर में जो पुरुष है is the provider. वो सभी बातों की जरूरतों को पूरा करता है. The man in the house owns the title to the land. और जो पुरुष, घर का जो पुरुष है वो जो जमीन है उसका हकदार है. So the whole social fabric of that family has been destroyed with the loss of Lazarus. और लाजरस के नाश के कारण उस परिवार का जो वजूद है सब मिट गया है. And Martha she's wrestling with Jesus. और यहाँ और हम देखते हैं कि मार्था यहाँ पर यीशु से लड़ रही कि क्यों. And then it's almost like she feels bad. और फिर ऐसा है कि उसे फिर बुरा लगता है. Verse 22. 22 वचन में. But I know that even now God will give you whatever you ask. और अब भी मैं ये जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा. Jesus says to her, यीशु उससे कहता है, मार्था, your brother will rise again. तेरा भाई फिर जी उठेगा. And then Martha answers the way most of us answer. और फिर मार्था इस प्रकार उत्तर देती है जैसे हम में से सभी लोग उत्तर देंगे. Yeah, I know. हाँ, मैं जानती हूँ. I know that in the resurrection, way out there somewhere, he's going to rise again. मुझे पता है कि पुनरुत्थान के दिन कभी बहुत सारे दिनों के बाद वो जी उठेगा. But what about today? लेकिन आज के बारे में क्या? What about now? अभी के बारे में क्या? Resurrection's great out there, but what about now? पुनरुत्थान अच्छा है, वो उस दिन के लिए अच्छा है, लेकिन आज के बारे में क्या? You see, so many of us, we have a theology that is futuristic. और हम में से बहुतों के पास ऐसा सोच है, ऐसा विचार है जो भविष्य के बारे में है. We know so many promises and we put them into the future somewhere, maybe one day. और हम कितने सारे वायदों को जानते हैं और हम उन वायदों को भविष्य में कहीं तो कभी तो वो होगा ऐसे रखते हैं. Jesus says, यीशु ने कहा, one day in the future I will be the resurrection and the life. कि पुनरुत्थान और जीवन में मैं हूँ एक दिन भविष्य में. Did he say that? क्या उसने वो कहा? He said, I am. उसने कहा मैं ही हूँ. I am. कि मैं ही हूँ. Right here today. आज यहाँ पर. Present right now. आज यहाँ पर इस समय. Living within me. मेरे अंदर जीवित है. Is resurrection. पुनरुत्थान.
Martha, मार्था, we need to move your thinking from just the future into today. और हमें तुम्हारा सोच जो भविष्य में है वहां से लेकर आज में लाना है। You see, Martha had no framework for a present tense resurrection. और मार्था के पास ऐसे सोचने का कोई तरीका नहीं था कि आज ये हो सकता है। The disciples have no framework for a present resurrection. और जो शिष्यों के लिए कोई ऐसा सोच नहीं था या विचार नहीं था जिससे वो सोच पाए कि आज पुनरुत्थान हो सकता है। And Jesus knows it's only a matter of 3 or 4 weeks before he goes to the cross. और यीशु को यहाँ पर पता है कि अब और 3-4 हफ्ते ही है कि वो वापस क्रूस पर जाने वाला है। And so he's challenging, he's pushing, he's stretching the minds of his disciples to prepare them for his resurrection. और यीशु यहाँ पर अपने लोगों को, अपने शिष्यों के मनों को तैयार कर रहा है, उनके मनों को खोल रहा है ताकि वो उसके पुनरुत्थान के समय तैयार रहे। So he says, I'm the resurrection and the life now, और वो today. कहता कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ आज। If you keep reading in John chapter 11, अगर यूहन्ना उसके 11वें अध्याय में आप पढ़ते रहे, you'll come to where Jesus comes, where Mary comes to Jesus. और हम देखते हैं कि वहाँ पर मरियम यीशु के पास आती है। Verse 32. और 32 वचन, Mary reaches the place where Jesus was. And Mary says almost identical words to what Martha had said. और मरियम हम देखते हैं कि जहाँ पर यीशु था वहाँ पर पहुँचती है और जो शब्द मार्था ने कहा था वही शब्द हम देखते हैं कि मरियम भी वहाँ पर बोलती है। Jesus, यीशु, if you'd been here, अगर तुम यहाँ होते my brother would not have died. मेरा भाई नहीं मरता। I want to say to you today, church, मैं आपको आज कलीसिया ये कहना चाहता हूँ, sometimes we look at a situation कभी कभी हम परिस्थिति को देखते हैं and it seems dead. और वो मरा हुआ रहता है It seems impossible. और ऐसे लगता है कि ये असंभव है It seems like it seems like there is no hope और for a हमें future change. और ऐसे लगता है कि भविष्य में बदलाव के लिए कोई आशा नहीं है। Jesus said, I am resurrection. और यीशु ने कहा कि मैं पुनरुत्थान हूँ। He says, whoever believes in me shall live. और वो कहते हैं जो भी मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवित रहेगा। And Jesus is wanting to put within us और यीशु चाहता है कि वो हमारे अंदर ये डाले an understanding of what resurrection means. और एक समझ कि पुनरुत्थान क्या है। We can't have resurrection until we have death. और जब तक मृत्यु नहीं है तब तक पुनरुत्थान नहीं होगा। You can't have the supernatural miracles unless you have a problem that is beyond the natural capacity. और जब तक आपके सांसारिक बातों से बढ़कर कोई समस्या नहीं होगी तब तक अलौकिक चमत्कार आपको नहीं होगा। So Martha and Mary, their eyes were, this is a disaster. और मार्था और मैरी की नजर में वो ऐसा था कि ये तो बहुत खराब बात है। And Jesus says, this is a chance to reveal who I am. और यीशु कहता है कि ये एक मौका है कि मैं प्रकट करूं मैं कौन हूं। You keep reading the story. आप इस कहानी में आगे पढ़ते रहोगे। Jesus comes and he raises Lazarus from the dead. और यीशु आता है और लाजरस को मृत्यु में से जलाता है। Something of what happened here और कुछ तो जो यहाँ पर हुआ became embedded into Mary. और वो मरियम में ऐसे बैठ गया। Martha is the one, if you read the story carefully, she's challenging Jesus. और हम देखते हैं कि मार्था हम देखते हैं कि यीशु को चुनौती देती है वहाँ पर। But Mary has a very soft heart. लेकिन मरियम का एक बहुत मुलायम हृदय है। And if you read in John chapter 12, और यूहन्ना उसके 12वें अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे, this is the story where Mary comes to Jesus. और ये वो कहानी है जहाँ पर मरियम यीशु के पास आती है And she takes a bottle of perfume. और वो एक परफ्यूम की एक बॉटल को लेती है And she pours it out on Jesus' feet, wipes his feet with her hair. और वो उसको यीशु के पैर पर डालती है और उसके पैरों को अपने बालों से धोती है, साफ करती है। And Jesus makes this fascinating statement. और यीशु वहाँ पर ये एक सामर्थी वाक्य कहता है। He says, this oil was meant to be kept for my burial. और ये जो तेल है ये मेरे कब्र में डालने के समय के लिए था। But she has understood that she can anoint me now.
Present tense. लेकिन उसको ये समझ आया है कि वो अभी ही मुझे अभिषिक्त कर सकती है। Something of the power of resurrection had gone into Mary's heart. और पुनरुत्थान के सामर्थ के बारे में कुछ तो मरियम के हृदय में गया, She was starting to see with the Father's eyes. और वो पिता के नजरिए से देखने लगी थी। John chapter 20 records the fact that Mary was the first person to acknowledge Jesus after he rose from the dead. और यूहन्ना उसके 20वें अध्याय में हम देखते हैं कि मरियम पहली व्यक्ति थी जिसने ये माना कि यीशु जी उठा है। What eyes are you seeing with today? आज आप किस नजरिए से देख रहे हैं? Are you looking at a crisis? क्या आप एक परिस्थिति को देख रहे हैं, Or are you seeing that the Father is creating some situation to grow faith within you? या आप एक ऐसे स्थिति से देख रहे हैं कि पिता एक परिस्थिति को ऐसे बना रहा है ताकि वो आपके अंदर एक चमत्कार को बनाए? I want to finish quickly with some scriptures out of the book of James and of 1 Peter. और अय्यूब की किताब से और एक पत्रस की किताब से मैं कुछ वचनों से अंत करूंगा, Because I would love it if becoming a follower of Jesus removed the challenges. क्योंकि मुझे ये बेहद पसंद होता कि अगर मैं यीशु का शिष्य बनाऊं और सभी चुनौतियां जो है मेरे जीवन से निकल जाए। But we've got to understand that God is more interested in forming himself within us than he is in delivering us from the immediate crisis of our life. लेकिन हमें ये समझना है कि परमेश्वर अपने आप को हमारे अंदर बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है, ना कि हमें हर एक समस्या से बाहर निकालने में। James chapter 1 verse 2 and 3. और याकूब उसका पहला अध्याय 2 और 3 वचन। Consider it pure joy, my brothers, when you face trials of many kinds. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। Because the testing of your faith develops perseverance. यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। Perseverance means struggle. It means patience. It means struggle. It means patience. और संघर्ष का अर्थ है धीरज का अर्थ है संघर्ष, उसका अर्थ है धीरज रखना, उसका अर्थ है संघर्ष से गुजरना। Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete. Get it? Lacking nothing. पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। The Father's agenda is that you and I lack nothing. पिता का योजना ये है कि तुम और मैं किसी भी बात की हम में घटी ना हो। That means he is going to continue to stretch, continue to enlarge us until we grow to that place. और इसका अर्थ है कि वो हमें बढ़ाते रहेगा, वो हमें खींचेगा तब तक जब तक हम सभी बातों से संपूर्ण ना हो। Come down to verse 12, James 1 verse 12. और याकूब उसके पहले अध्याय 12 वचन में आप आए। Blessed is the man who perseveres under trial. और धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। Because when he has stood the test, क्योंकि जब वो खरा निकल कर आता है, he will receive the crown of life, और उसे जीवन का मुकुट पाएगा, which God will reward to those on that day. जो परमेश्वर उस दिन उन्हें देगा। See, God wants to put a crown on your life. और परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर एक मुकुट डालना चाहता है। He wants to put a crown of completion, of maturity. और वो एक संपूर्णता का, एक सिद्धता का हमारे ऊपर एक मुकुट डालना चाहता है। But if he doesn't see the faith that comes by perseverance, God will not do that. लेकिन अगर वो उस विश्वास को नहीं देखता जो धीरज के द्वारा आता है, तो वो नहीं करेगा। Does that make it easy? क्या ये आसान उससे बना, क्या ये उस No, बात it को आसान doesn't. नहीं? No, it doesn't. नहीं।
But the fact is, God is not interested in easy living. लेकिन बात यह है कि परमेश्वर आसानी के जीवन में, आसान जीवन जीने में दिलचस्पी नहीं रखता। Maybe it seems to you like Jesus is waiting 2 days. और आपके लिए शायद आप ऐसे सोच रहे हो कि यीशु 2 दिन रुका है। Maybe it feels like he's not coming. You're praying, you're fasting, you're holding on. Where is God in my situation? और आपके लिए ऐसे होगा कि आप प्रार्थना कर रहे हो, आप उपवास कर रहे हो, यीशु कहाँ है मेरे परिस्थिति में। I've been there. मैं वहां पर रह चुका हूँ I've walked through some of those. और मैं उन कुछ बातों में से चला हूँ। I understand what it means to feel like you're on the very edge. और मुझे पता है कि आपको ऐसे महसूस होता है कि आप अंत पर हो, क्या होता है। But let's understand. लेकिन इस बात को हम समझे, You can look at the actions of God, आप परमेश्वर के कार्य को देख सकते हो, or you can understand the ways of God. या आप परमेश्वर के तरीके को समझ सकते So हो। in James chapter 1, तो याकूब उसके पहले अध्याय में, James chapter 1 and verse 5. याकूब उसका पहला अध्याय 5वें वचन में, And this verse is in this context. और ये जो वचन है ये इस बात के विषय में है, If anyone lacks wisdom, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी he हो should ask God for wisdom. तो परमेश्वर से मांगे। What is the wisdom he's talking about here in James chapter 1? और याकूब के पहले अध्याय में किस प्रकार की बुद्धि की बात कर रहा है? It's the wisdom necessary in the middle of trial and perseverance. और ये उस बुद्धि की बात कर रहा है जिसकी जरूरत हमें संघर्ष के बीच में, हमारी परीक्षाओं के बीच में चाहिए। We like to take this and say, you just ask God for wisdom for anything you like. और हम इस वचन को हमें लेना पसंद और कहने कि जो भी तुम्हें चाहिए उसके लिए तुम परमेश्वर की बुद्धि मांग लो। But the context लेकिन इसका जो अर्थ है of asking for wisdom बुद्धि मांगने का, is asking God to understand what are you doing in my life through this trial and this perseverance. और उसका अर्थ ये है कि हम परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर इस परिस्थिति से, इस परीक्षा से आप मेरे जीवन में क्या करना चाहते हो। It changes everything. ये सब कुछ बदलता है। It changes everything when you understand God's objective in your life. और जब आप परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में जानते हो तो वो सभी बातों को बदल देता है। Very quickly, 2 Peter chapter 1, 2 Peter 1. जैसे जल्दी से दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, 2 Peter chapter 1, दूसरा पत्रस पहला अध्याय verse 3. तीसरा वचन। God's divine power क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ has given us everything we need for life and godliness. ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध में रखता है। This life and godliness comes through our knowledge of the one who called us. और हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, through his glory and his goodness. और जिससे हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। So verse 4. चौथा वचन, He has given us his great and precious promises, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, so that you may participate in the divine nature. ताकि इनके द्वारा तुम उसके सदहट से छुटकारे में के संसार में बुलाए जाओ। So every promise that God has made, तो हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की है, you can see it two ways. आप उसको दो तरीके से देख सकते हैं। The promise can be an escape clause from your problem. और शायद वो प्रतिज्ञा जो है आपके समस्या से आप उससे निकल सकते हो। I'm sick and I need to be healed. और मैं बीमार हूँ, मुझे चंगाई की जरूरत है, That's legitimate. और ये सच है। But he says here, the promises are so that we become partakers of the divine nature. और उसका वचन ऐसा कहता है कि वो प्रतिज्ञा इसके लिए है कि उसके अलौकिक स्वरूप के हम भागी बने। Every promise in the Word of God is simply a statement about the character of God. और हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर के वचन में है वो उसके चरित्र को दर्शाता है। Let me say it again. और मैं वापस से ये दोहराता हूँ, Every promise हर एक प्रतिज्ञा
is a doorway वो एक द्वार है into the experience एक अनुभव के लिए of the character of God. परमेश्वर के चरित्र को जानने। So we can see a promise as an escape from a challenge, तो हम प्रतिज्ञा को एक चुनौती से बचने के लिए देख सकते हैं, or the promise is the doorway into the experience of who God Himself is. या प्रतिज्ञा को हम एक द्वार के समान देख सकते हैं ताकि हम उससे गुजरे और जाने कि परमेश्वर क्या है। If we just look at the actions of God, and they're wonderful things, और अगर हम सिर्फ परमेश्वर के कार्य को देखें और वो बहुत अच्छे हैं, but God wants to move us so that we begin to experience the character of the one who does those things. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम वहां से निकलकर हम उस बात को अनुभव करें कि परमेश्वर कौन है। Remember, God promised to Abraham and Sarah, और आप परमेश्वर के प्रतिज्ञा को याद कीजिए जो अब्राहम और सारा को दिया था, I'm going to give you a son. मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा। 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, 20 years, 24 years. और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 24 साल। Imagine the journey inside Abraham over that time. और आप कल्पना कीजिए अब्राहम के अंदर वो जो यात्रा जो प्रतिज्ञा से वो गुजरा था। That's why the Bible calls him the father of faith. और इसीलिए बाइबल उसे विश्वास का पिता कहलाता है। Remember the story of Hannah. और आप हन्ना की कहानी को याद करें, She can't have a baby. उसका कोई बच्चा नहीं हो सकता, She cries out to God. लेकिन वो परमेश्वर के सामने रोती Year है। after year after year after year. और 1 साल के बाद दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, God was mean. और परमेश्वर वहां पर बहुत कठोर था। How horrible of God to make her wait for so long. और इतने समय तक उसे रोकना कितना बुरा है। To birth one of the greatest prophets in the scripture. और वचनों में एक महान भविष्यवक्ता को जन्म देना, It needed a woman of incredible faith और- to bring that man into being. और एक महान विश्वास की स्त्री का जरूरत था वहां पर उस व्यक्ति को लाने। Brothers and sisters, भाई और बहनों, if you can grasp what I'm saying this morning, और जो इस सुबह मैं कह रहा हूं अगर आप इसको पकड़ कर समझ सकते हैं, God is not mean when He leaves you in a challenge. और जब परमेश्वर आपको एक चुनौती में छोड़ देता है वो बुरा नहीं है। He's wanting us to grow. वो चाहता है कि हम उसमें बढ़े, He's wanting our faith to mature. वो चाहता है कि हमारा जो विश्वास है परिपक्व हो, He's wanting perseverance and resilience to rise within us. और वो चाहता है कि धीरज हमारे अंदर बढ़े। My final scripture this morning, इस सुबह के लिए मेरा आखिर का वचन, and this is Isaiah chapter 54 verses 1, 2 and 3. और यशायाह उसका 54 1, 2 और 3 है। And I'm speaking this in a sense prophetically to you as a church. और एक कलीसिया के रूप में मैं आपके लिए एक भविष्यवाणी के रूप में इसे कह रहा हूँ। Rejoice, O barren woman. Isaiah 54. 1, यशायाह 2 उसका and 3. 54 1, 2 और 3। Rejoice, O barren woman, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, and you who have not borne a child. और तू जिससे प्रसव पीढ़ी नहीं हुई। Burst into song, shout for joy, because like you were never in labor, because more are the children of the desolate than of her who has a husband. और गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होगे। यहोवा का यह वचन है। If life is easy and you have a husband and conception is easy, there is no faith in that develops in the heart through that ease of that journey. अगर तुम्हारा जीवन है, आज जीवन आसान है, तुम्हारा पति है, और अगर बच्चा जन्म देना आसान है तो कोई विश्वास नहीं है वहां पर। But more are the children of the one who has walked through desolation. क्योंकि जो त्यागी हुई के लड़के हैं उससे वो अधिक है। The outcome of mature faith और एक परिपक्व विश्वास का जो परिणाम है becomes the demonstration of the character of God. और वो परमेश्वर के चरित्र को दर्शाता है।
Yes, the actions of God, the miracles are there, absolutely. हाँ, परमेश्वर का कार्य वहाँ पर है, उसका चमत्कार वहाँ पर है, निश्चित रूप से। But there comes another dimension when we have to wrestle through to that place of victory. लेकिन एक दूसरा ही नजरिया आता है जब हमें उस विजय के लिए हमें लड़ना है। Enlarge the place of your tent. और अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, Stretch out your tent curtains. और तेरे डेरे के फट लंबे किए जाए। Don't hold back, but lengthen your cords and strengthen your stakes. और हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खुटों को दृढ़ कर। House of God, हाउस ऑफ गॉड, you walk through challenges. आप चुनौतियों से चलोगे। You have a gracious Father. आपका एक अनुग्रही परमेश्वर पिता है, And the challenges are crafted, they are shaped by your heavenly Father's hands. और ये जो चुनौतियां है वो आपके स्वर्गीय पिता के हाथों के द्वारा बनाए गए हैं। And the process of testing और जो परीक्षा ले जाने की जो प्रक्रिया है is the process for lengthening your cords. और वो आपके रस्सियों को लंबा करने के लिए है, It's the process of strengthening your foundations और- and your stakes. और आपके नींव को आप वो मजबूत करने के लिए है, Because more will be the children. क्योंकि बहुत हो गए उनके पुत्र, Greater will be the outcome of our lives. क्योंकि हमारे जीवन का परिणाम महान होगा, Because God is with us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। Elizabeth has a verse that she wants to share with you that Lord spoke to her this morning. और एलिजाबेथ के पास एक वचन है जो वो बांटना चाहते, जो परमेश्वर ने उनसे इस सुबह कहा। God said to me, and was confirmed with what Pastor said, there is a time that's coming when God is going to move in this house, and there's going to be a real move of the Holy Spirit, that you're going to see signs and wonders, but don't focus on the signs and the wonders. Focus on Him and His presence. He's the one that's coming. But what the verse I got, और परमेश्वर ने मुझसे कहा, और पासवान ने भी उस बात को निश्चय किया इस सुबह कि एक समय आ रहा है जब पवित्र आत्मा इस घर में इस प्रकार कार्य करेगा कि हमें चिन्ह और चमत्कार देखेंगे, लेकिन हमें उस चिन्ह और चमत्कार पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन परमेश्वर पर हमें हमारी नजर रखना है। और जो वचन मुझे मिला is 2 Chronicles verse 17. और दूसरा इतिहास उसका 17वां अध्याय। Jehoshaphat, one of the good kings, succeeded as king and strengthened himself against Israel. Israel and Judah were separated at that time, and so Israel represents the other kingdom that was ungodly and had gone back into the ways of the world. और हम देखते हैं कि उसका पुत्र यहोशाफात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और उसने इज़राइल के विरुद्ध अपने बल बढ़ाया। He stationed troops in all the fortified cities of Judah. उसने यहूदा के सभी गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहराए दिए। And what I felt God say was that it's time for the troops to be trained in warfare and prayer. और मुझे इस समय से परमेश्वर ये कह रहा है कि ये समय है कि जो सिपाही है उनको तैयार करना है प्रार्थना में और आत्मिक युद्ध में। Because when God comes in and His presence is here, क्योंकि जब परमेश्वर आता है और उसकी उपस्थिति यहाँ पर है, the enemy takes more notice. और जो शत्रु है तब ज्यादा ध्यान देता है, And the enemy's attack increases. और जो शत्रु का जो हमला है वो बढ़ता है। And I felt the word was that you are to train and to establish those troops around the outside, as it were, of the church. और मुझे ये महसूस हो कि परमेश्वर चाहता है कि हम उन सिपाहियों को तैयार करें और उनको तैनात करें जो इस घर के बाहर है। And there were troops that were skilled in spiritual warfare. और कुछ सिपाही ऐसे थे, ऐसे गढ़ ऐसे थे जो आत्मिक युद्ध में खास थे।
They move things in the spirit realm. और वो आत्मा की दुनिया में बातों को कार्य करते थे And the angels take notice. और स्वर्गदूत उसे देखते हैं Sometimes it's prayer and worship. और कभी-कभी वो प्रार्थना और आराधना है Sometimes it's declarations. और कभी-कभी कबूल करना है But I sensed that there was a protection over this church that was going to come. लेकिन मैं ये महसूस कर रही थी कि एक ऐसी सुरक्षा इस कलीसिया पर आने वाली है It was like the iron dome over Israel. और वो जो एक लोहे का डोम जो इज़राइल के ऊपर था उस प्रकार का था And as your troops persevered in prayer and worship, और मैंने देखा कि ऐसे सिपाही जो प्रार्थना में और आराधना में लगे हैं they were strategic and identified things that were coming against the church. और वो बहुत योजना से रखे गए थे और उन बातों को जो जान गए थे कि कलीसिया के विरुद्ध में आने वाले उसके विरुद्ध में थे And when they identified them, those things that were coming like missiles were just annihilated. और जब वो लोग पहचान में आए गए थे तो जो शत्रु के हमले थे जो मिसाइल के रूप में आ रहे थे उसके विरुद्ध में वो खड़े थे So as the missiles fly from the enemy, और जैसे शत्रु से वो मिसाइल आते हैं so it was that the angels were able to go forth and just eliminate those things over the church. और वैसे ही स्वर्गदूत जा पा रहे थे और वो कलीसिया के ऊपर से उस खतरे को निकाल रहे थे Because I sense that God has purpose in growing and bringing forth His presence over this church in an amazing way. क्योंकि मुझे ये महसूस हुआ कि परमेश्वर का एक उद्देश्य है उसके उपस्थिति को इस कलीसिया में लाने के लिए Just praise God. Absolutely. I want to pray for us just as I finish today. और जैसे मैं समाप्त करता हूँ मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ And I'd ask you to stand. Let's all stand together. और मैं आपसे विनती करूँगा कि हम सब खड़े हो जाए And I want to ask you if you're in the middle of one of those situations where it seems that Jesus is waiting 2 days to come. और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप एक ऐसी परिस्थिति के बीच में हो जहाँ पर आपको यीशु कह रहा है कि यीशु रुका हुआ है और 2 दिन के लिए Are your eyes on the problem? क्या आपका ये जो आँख है समस्या पे है Or are your eyes on the Savior who is still coming? या आपके जो आँख है उस उद्धारकर्ता के ऊपर है जो आ रहा है Close your eyes. अपने आँखों को बंद करें If that's you this morning, just slip up a hand acknowledging the struggle, the wrestle, the battle that you were in. और अगर ये व्यक्ति आप हो तो आप अपने हाथ को उठाए आप ये इसे माने कि आप उस संघर्ष में हो उस समस्या में हो Jesus, I thank you this morning पिता यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं सुबह that you are never late. कि आप कभी भी देरी से नहीं आते You never miss the time. आप कभी भी समय को चूकते नहीं हैं You are always working for our very, very best. और आप हमेशा हमारे उत्तम के लिए ही हमेशा आप काम करते हैं Lord, you are growing perseverance within us और आप हमारे अंदर धीरज को बढ़ा रहे हो because you want us to receive that crown of क्योंकि success. क्योंकि आप सफलता के मुकुट चाहते हैं हम पाए So Heavenly Father, तो स्वर्गीय पिता I just pray for grace today. और मैं अनुग्रह के लिए मांगता हूँ इस सुबह Every brother, every sister here is wrestling with issues. और हर एक भाई हर एक बहन जो किसी भी चुनौती से सामना कर रहे हैं Strengthen them. उनको आप बल दे Set their eyes on you. उनके आंखों को नजर को आपके ऊपर वो रखे Lift their eyes above the current crisis और उनके आंखों को उनके परिस्थिति के ऊपर ले आ and let them see you in the middle of that situation. और वो उस परिस्थिति के बीच में आपको देखे Father, I pray in the name of Jesus. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में In the name of Jesus. यीशु के नाम में Amen. आमीन Amen. Thank you again so much for the privilege of sharing with you. Thank you. और Pastor. फिर से इस सौभाग्य के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं